So let us look at a very interesting application of the partitioning scheme in Quicksort. This basically is called as the quick select algorithm that finds the kth largest element in an array. So first of all, let's see if I have an array that is say 2, 1, 5, 9, 8, 7 and 10. So if this is your array consisting of 3, 3, 6 and 7 elements. It has 7 elements. And let us say I want to find the third largest element. So how would you find the third largest? One simple strategy is to sort the entire array and choose the element that is third from the right. That would be the third largest. But that is not what we need to do for actually calculating the kth largest. Sort ही कर दिया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने को. But let's say you don't want to sort. It is asked that you do this without sorting. So quick select is the algorithm that you can apply to actually calculate the third largest or the kth largest without having to sort the array. So first of all, see the pattern. If I have n equals to 7 elements, let's say these are the places. 7 elements के लिए placeholders हैं. In the array, this index is the 0th index. This is the first index, second, third index, fourth index, fifth index and the sixth index. अगर आपको kth largest element और अगर आपको largest element ही चाहिए in general, so what number would come at the sixth place, sixth index? This would be the first largest. अगर आप इसको sort कर देते तो this would be the second largest. This would be the third largest. This would be the fourth largest. This is the fifth largest. This is the sixth. And this is the seventh largest. So now see the pattern between the number that is the ith largest and the index at which it appears in the final sorted array. Fourth largest occurs at the third place. What is the sum of 4 plus 3? It's 7. So see, this is invariant. 5 plus 2 is 7. 6 plus 1 is 7. 3 plus 4 is 7. 2 plus 5 is 7. 1 plus 6 is 7. So that means you have a relation between the kth largest and the index at which it appears in an n element array. So the formula that you see is, the relationship is, if you want the kth largest, then k plus the index I at which it will appear in the sorted array should be equal to the number of elements in the array. That means that if you want the kth largest element, so let us say if k is 2, then at what index would it appear in the final sorted array? At the n minus 2th place. आप array में sort करने के बाद n minus 2th place पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा second largest element. So that means for a general kth largest element, what I want is the value of the array at the index n minus k. So this element is what I'll be looking for when somebody asks me about the kth largest element. तो वो किस इंडेक्स पे मिलेगा मेरे को मेरे array में n minus kth इंडेक्स पे. That means I know the index beforehand. तो let us say अगर मैं इस array को पार्टीशन करता, पार्टीशन करने के बाद मुझे ये पता चलता मेरा array लोअर से लेकर एक p तक लोअर हाफ में होगा, कुछ एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक, और कुछ एलिमेंट्स होंगे p प्लस 1h से लेकर लास्ट तक. ये मेरा पार्टीशन होगा जब मैं अपना एल्गोरिथम लगाऊंगा, फोर्स पार्टीशन एल्गोरिथम लगाऊंगा जब मैं, तो मेरा जो पिवट है, जो पार्टीशन का इंडेक्स है, वो किस पोजीशन पे होगा? वो p पे होगा. और ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स इन सारे नंबर से छोटे हैं. बट एक चीज जो गारंटी है कि इनकी पोजीशनिंग, ये जब भी सॉर्ट होंगे, ये कभी भी कौन से इंडेक्सेस पे आ सकते हैं, एल से लेकर पी तक. और ये जो भी नंबर्स हैं, ये अभी सॉर्टेड हो चाहे ना हो, लेकिन इसका सबसे छोटा नंबर भी कौन से इंडेक्स पे आएगा? p प्लस 1 पे ही आएगा. इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन से इंडेक्स पे आ सकता है? p पे आ सकता है. सो इफ आई वॉन्ट माई टारगेट इंडेक्स टू बी n minus k, so let us decide that my target index is, which I am looking for, is n minus k. तो मैंने क्या किया, इस टारगेट इंडेक्स को पकड़ा और मैंने कंपेयर किया इसको p से. अगर ये टारगेट इंडेक्स जिसको मैं ढूंढ रहा हूं,
अगर वो P या P से कम है तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि आई डू नॉट नीड टू सर्च इन दिस पार्ट एवर अगेन, बिकॉज इस इंडेक्स पे P+1 से आगे वाले जो एलिमेंट्स होंगे जो कभी प्लेस होंगे सॉर्टेड एरे में, उसका सबसे छोटा एलिमेंट P+1th इंडेक्स पे ही होगा। एंड लेट अस से इफ आई टेक दिस और मैंने कंपेयर किया P से और मेरा ये टारगेट वैल्यू P से बड़ा निकल गया, सो देन आई एम श्योर कि आई नेवर नीड टू सर्च इन दिस चंक, क्योंकि इस चंक में लार्जेस्ट एलिमेंट कभी जो इंडेक्स हो सकता है वो P ही हो सकता है और मेरा टारगेट इंडेक्स P से बड़ा निकल रहा है। दैट मीन्स आई कैन अप्लाई माई क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम टू फर्स्ट गेट दिस इंडेक्स, देन आई विल कंपेयर दिस विद माई टारगेट इंडेक्स जो मैं ढूंढ रहा हूं, और एक ही झटके में यू कैन आइदर डिस्कार्ड दिस चंक और दिस चंक। क्विक सॉर्ट में आप क्या करते हैं, आप दोनों में ढूंढते हो और क्योंकि आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आपको ये हिस्सा भी सॉर्ट करना होता, आपको ये हिस्सा भी सॉर्ट करना होता। बट वेन यू जस्ट वॉन्ट टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट, वंस यू नो दैट दिस टारगेट इंडेक्स n-k बड़ा है P से, तो इधर ही ढूंढना है, यानी कि ये एक तरीके से जो हाफ का चंक है ये पूरा ही डिस्कार्ड हो गया। सो दैट मीन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज T ऑफ n। अगर आप क्विक सॉर्ट करते तो आप दोनों में जाते, लेट से हाफ हाफ हो गया, आप दोनों में जाते और ये होता पार्टीशन। बट यहां पे आप दोनों में नहीं जाओगे, आप एक चंक को तो बिल्कुल ही हटा दोगे। सो दिस इज द एवरेज केस of quick select, this algorithm which comes out to be linear. This is nothing but O of n. बट हाँ, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर आपने पार्टीशनिंग ऐसी हो गई कि हर बार ऐसा कुछ निकलने लगा, एक तरफ एक एलिमेंट बाकी सारे एक तरफ, हर बार ऐसा हो रहा है, सो देन इट बिकम्स O of n square. But in general, by randomizing that pivot choice, we can always arrive at this linear time complexity of finding the kth largest element. कैसे करेंगे अभी इसको देखते हैं। इट इज सिमिलर टू डूइंग बाइनरी सर्च, हम रिकर्शन नहीं करेंगे बट वाइल लूप में कर देंगे इसको, अभी देखते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ये चीज फैक्ट जो यूज होगा वो क्या है, वो ये है, इफ माई टारगेट इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू P, मुझे पता है P से आगे का चंक बिल्कुल ही बेकार हो गया, दैट मीन्स मैं अपने हाई वाले काउंटर को P पे ले आऊंगा, मतलब एक तरीके से समझो आप, मैं इस पूरे को इसको ही साफ कर दूंगा, अब से ये मेरा एच हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स से अगर ये ट्रू नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लो को बढ़ा दूंगा, यानी कि मुझे राइट हाफ में ढूंढना है, तो उस केस में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ और मेरा लो अब यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे 9 रखा हुआ है। सो दिस इज द होल लॉजिक of this quick select algorithm. So I'll discuss the code. So let us see a dry run of this quick select algorithm. Let's say we want to find the third largest element. So first of all, check how many elements are there. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 elements. So we have n equals to 10. So the index that we are looking for is in the sorted portion 10 minus 3. That is, we are looking for A at 7. Seventh index is the important index. So let us just number these indexes also. So this is the 0th index, first index, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth. So let us start. Pivot is the special value, that is the last value in the current subarray. So this is smaller, so moves ahead. यहाँ पे get stuck. They both get stuck. Exchange happens. ये break करो deadlock. दोनों को एक आगे और एक पीछे. Now 14 is smaller, moves ahead, gets stuck. 65 is larger, moves ahead. Now they both get stuck. Swap them. Yellow फिर एक आगे, green पीछे. Yellow is not smaller, but green is larger. Now both get stuck. So 4 and 76 get swapped. Now they have crossed. So the partitioning index is which index? 4. And the target index is this
The target index is 7. So what I do, I check this target index, सेवेंथ इंडेक्स पे चाहिए. तो जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं जब भी सॉर्ट होंगे उनका तो इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक ही आना है. दैट मीन्स दिस इंटायर पोर्शन इज यूजलेस. मेरे को आगे सर्च करना है कहीं. दैट मीन्स दिस इंटायर चंक इज नॉट वर्थ फाइंडिंग एनीथिंग. हटा दिया. नाउ अगेन आई डू द पार्टीशनिंग. ग्रीन स्टार्ट्स एट द लास्ट इंडेक्स of the current sub array. Now, what is the special value? The last value. Move the pointer. 76 is smaller. Moves ahead. Get stuck. Now swap them. येलो आगे, ग्रीन पीछे. येलो स्मॉलर ही है, आगे बढ़ गया. और स्मॉलर है और आगे बढ़ गया. Now the exchange has happened. So now this portion is the pivot index. क्या आया? Partitioning index is the 8th index. So this is the partitioning index. Now once again I compare my target with this 8. 7 मतलब यहाँ पे कहीं है. The third largest is somewhere there. Okay. So the portion that is not useful now is the portion this gets removed. This gets removed. So now the higher index becomes the 8th index and the lower index becomes the 5th index. Now once again run. The special value is the last value. 65 now becomes special and 92 is a common element. Now run this. 76 is smaller. No. 65. So first swap them. ये swap किया आगे और ये पीछे. 92 येलो पे 92 है, वो छोटा नहीं है, छोड़ दिया. 58 बड़ा नहीं है 65 से, वो भी छोड़ दिया. सो व्हाट यू डू, स्वैप देम एंड प्रोसीड. इसको आगे, इसको पीछे. तो क्रॉस ओवर हैज हैपेंड. सो द पिवट इंडेक्स इज, पार्टीशन इंडेक्स इज, सॉरी, 6. So 6 is the partitioning index. Now compare this 7 with this 6. 7 बड़ा है. That means this entire portion gets wiped off. यानी कि लोअर बन गया 7th इंडेक्स और हायर तो कहाँ पर है? हायर इज एट द 8th इंडेक्स. तो ये रहा ग्रीन हाई पे. पिवट इज 76. Now 92 is not smaller. रुक गया. 76 is not larger than 76. So exchange this and make them move. Exchange has been done. The partitioning index in this case is, ये पिछले का था, the partitioning index is 7. So target is 7. If target is less than equal to G, that means I need to search only in this portion. That means the upper portion is useless. ठीक है. येलो भी यही आएगा और ग्रीन भी यही. जब एक एलिमेंट होता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं. We just do not execute anything. एक में तो कुछ करना ही नहीं. So now as you can see, A at 7 is 76, which is in fact the third largest element in the array. See, this was the array. What is the first largest element? The first largest element is 92. The second largest is 89. Then you have 76 as the third largest element. So this code runs. Let us do one more dry run. And let's say this time we want to find the 7th largest element. So start. This is the pivot. Smaller है, आगे बढ़ा. Now they both get swapped. Proceed करा इसको और इसको. 14 is smaller, आगे बढ़ा. 65 is larger, ये भी आगे बढ़ा. Now get stuck. Do this. Do this. 23 is smaller, आगे. 76 is stuck. 58 is larger. 89 is larger. Now they both get stuck. So this
ये कर दिया. Now the crossover has happened. The pivot index is what index? 0th index, first index, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So the partitioning index is this 4. And what is the target index? There were 10 elements. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the target index is 10 minus 7, that is equal to 3. So I take this 3, compare it with the partition index. This is smaller. So if this is less than or equal to G, that means the upper portion is not worth scanning for. So this gets eliminated. That means now the new upper is high is what? High is the 4th index. And now the lower will start at this. Lower तो change ही नहीं हुआ, but upper change हो गया, higher change हो गया मतलब. Now 40 becomes a normal value and the pivot becomes the last value. Now 37 is not smaller. 4 is not larger than 4. Swap. Move ahead. Move back. और इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी ये स्पेशल नहीं है. Now 40 is smaller नहीं है 40 4 से. 23 4 से बड़ा है तो move ahead. 14 4 से बड़ा है move ahead. 40 4 से बड़ा है तो move ahead. So crossover has happened. So that means the pivot index is the 0th index. Compare this target with this 0. 3 ज़्यादा है यानी कि I will not search in this portion ever again. अभी lower change हो गया, higher वही रहा. Higher is at 4 itself. The pivot is 37. Now 40 छोटा नहीं है, रुक गया. Swap हुआ. येलो आगे, ग्रीन पीछे. 14 स्मॉलर है तो आगे. 23 भी स्मॉलर है तो आगे. क्रॉसओवर हो गया. द पार्टीशनिंग इंडेक्स इज द थर्ड इंडेक्स and the target index is 3. So check with this 3. 3 is less than equal to 3. That means I need to search only this portion. That means the above portion is not useful. So now the higher is this and lower is the first index. Now this is not a special index now in the new run. 3 को रखते हैं वापस और शुरू करते हैं. 37 is not special now because now the special element is 23, the last index. Zero मतलब येलो नॉट स्मॉलर, रुक गया तो स्वैप होगा. प्रोसीड फर्दर. येलो छोटा है, आगे मूव किया, स्वैप हो गया मतलब एक्सचेंज हो गया. ग्रीन रिमेन्ड देयर. नाउ दिस पार्टीशनिंग इंडेक्स इज द सेकंड इंडेक्स एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज द थर्ड इंडेक्स. ज़्यादा है यानी कि ये पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया टिल पी द पार्टीशनिंग इंडेक्स. सो इस बार हायर भी यहीं पे रहेगा और यही वैल्यू पिवट है. बट जब एक ही वैल्यू होती है हम अपना कोड चलाते नहीं है. वी रिटर्न a of 3 which is 37. So the seventh largest element is in fact 37. So as I said, the main portion of the code is this. This is the main portion. If target is less than equal to p, then high at p, low at p plus 1. Okay. So now let us write the code for the kth largest element using quick select. So you will use quick select. तो क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले हम ये काम लूप में करेंगे. सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इनको. हमें चाहिए होता है एक येलो,
वाई से डिनोट कर दिया। एक हमें चाहिए ग्रीन, एक हमें चाहिए होता है पिवट, एक हमें चाहिए टारगेट। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम बना लेते हैं, ठीक है। जब पहली बार ये कोड चलेगा, सो लोअर इंडेक्स इज एट 0, द हायर इंडेक्स इज एट nums डॉट साइज -1, n -1 पे होगा लार्जेस्ट इंडेक्स। अगर n एलिमेंट का एरे है तो साइज n है तो लार्जेस्ट इंडेक्स होगा n -1 पे पहली बार। सो l डिफाइन कर लिया, लोअर h डिफाइन कर लिया। अब मुझे टारगेट भी चाहिए। व्हाट इज माय टारगेट? टारगेट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज nums डॉट साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस k। तो ये मेरा टारगेट है। पिवट, अभी देखते हैं पिवट बनाएंगे। अब शुरू करते हैं काम लूप में। ये सब काम तभी होगा वेल व्हेन लो इज लेस देन h, यानी कि दो एलिमेंट हैं तभी करते हैं कुछ काम। एक एलिमेंट है और एम्प्टी आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है। क्या काम करना है? सबसे पहले इस लूप के अंदर डिफाइन करते हैं। ये लूप एक तरीके से रिकर्शन समझ लो आप। तो लो येलो इज एट l, जो हमेशा होता है, ग्रीन इज एट h, पिवट हमेशा हम किसको मानते हैं? a एट h। अब कोड सिंपल किसका लिखना है? क्विक सॉर्ट की पार्टीशनिंग स्कीम का। पिवट बना लिया, येलो ग्रीन रख दिया। अब पार्टीशन का कोड, जब तक येलो लेस देन इक्वल टू ग्रीन है, क्या करो? वाइल येलो इज लेस देन और इक्वल टू h एंड a एट येलो इज लेस देन पिवट। क्या करना है? सिंपली येलो को बढ़ाते रहो। अगला वाइल ग्रीन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू l एंड a एट ग्रीन इज ग्रेटर देन पिवट, ग्रीन को घटाते रहो। अगर क्रॉसओवर हो गया, इफ यू सी अ क्रॉसओवर, मतलब येलो हैज बाईपास जी, बढ़ते बढ़ते जी को बाईपास कर दिया, तो हम क्या करते थे? हम रिटर्न करते थे, क्योंकि हम किसी रिकर्शन के उसमें थे। तो हम यहां पे क्या करेंगे? सिंपल, हम यहां से ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन अगर बाईपास नहीं हुआ, अभी क्रॉसओवर नहीं हुए दोनों, तो क्या करना होता है? स्वैप कर देंगे, ए एट येलो बढ़ा देंगे, येलो स्वैप कर देंगे ग्रीन के साथ, ग्रीन को पीछे कर देंगे। सो दिस इज द लूप फॉर आवर पार्टीशनिंग स्कीम। देखो, ये हमारा पार्टीशनिंग का छोटा सा स्कीम है। इसके बाद ब्रेक अगर हो गया होगा तो ब्रेकिंग का इंडेक्स क्या है? जी, जी वुड बी द पार्टीशन। अगर मेरा टारगेट इंडेक्स लेस देन इक्वल टू पी है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है पी से आगे का पोर्शन एकदम ही यूजलेस है, तो मेरा हायर इंडेक्स शिफ्ट होके पी पे आ जाएगा, यानी कि एल से लेकर पी में ही सर्च करो आप जो भी है। दैट मीन्स एच बिकम्स पी। एल्स के केस में उल्टा हो जाएगा, एल्स के केस में हो जाएगा लोअर को बना दो पी प्लस 1, यानी कि ऐसा है, मेरी पार्टीशनिंग ऐसे हुई है, ए फ्रॉम एल टू पी एंड देन फ्रॉम ए फ्रॉम पी प्लस 1 टू एच। तो अगर टारगेट 1 से p में गिर गया तो यहीं ढूंढो, यानी कि ये वो पोर्शन खराब है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसमें ढूंढ रहे हो तो आपका हायर इंडेक्स कौन बना? p बना, तो p बना दिया। बट अगर टारगेट इंडेक्स इसमें गिरा तो अल्टीमेटली ये पूरा बेकार हो गया और ये बच गया, सिर्फ आपको इसमें ढूंढना है, इस राइट में। तो इसका लोअर कौन बन गया? p प्लस 1, वही किया यहाँ पे, ठीक है। ये एल्स और ये इफ, या तो आप h बदल दोगे या तो आप l बदल दोगे, यानी कि आपका साइज रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जब आप वापस जाओगे कभी ना कभी l को बढ़ाते हुए या p को घटाते हुए आप कभी ना कभी इस लूप से बाहर आओगे। जब आप बाहर आ जाओ, सिंपली रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न a ऑफ टारगेट। आप नैरो डाउन कर चुके होगे जब आप बाहर आओगे, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक एंड दिस इज द कोड फॉर क्विक सेलेक्ट। इसको एक बार रन कर लेते हैं। इसमें सेमीकोलन आएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? कुछ और है इसमें? चलो चला के देखते हैं। ओके, नम्स नहीं है, ए है। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए।
पी, पी लिखा है कि पिवट, ओके, पी मतलब पार्टीशन का इंडेक्स, वो तो ग्रीन है, पी मतलब ग्रीन, क्योंकि हमारा को हमने जो स्कीम लगाई है पार्टीशनिंग की उसमें जी इज द पार्टीशनिंग इंडेक्स, जी G+1. So this runs, you submit this. So this is the code, simple. You can also randomize this, जो हम करते भी हैं कभी कभी। देखो रैंडमाइज कैसे करना होता है, क्विक सेलेक्ट चल गया है वैसे, बट फिर भी उसे एक आधा केस के लिए जिसमें वो डिग्रेड हो जाए ऑर्डर एन स्क्वायर के लिए। सो दिस कोड इज ऑर्डर एन एवरेज केस, बट लेट से डिग्रेड होने वाला कोई एक केस भी होता आगे कभी डाल दें, तो जो जिससे आप बच सकते हो, यू कैन डू अ रैंडमाइज्ड क्विक सेलेक्ट ऑल्सो। तो क्या करो आप, एक रैंडम इंडेक्स जनरेट कर लो, एल प्लस रैंडम फंक्शन कॉल करो, अपनी रेंज में नंबर को जनरेट करो, स्वैप करो ए एट आर, ए एट एच, पिवट इज ऑलवेज ए एट एच नाउ, ठीक है। So this should also run. So as you can see, it runs. So this version is the, write this for randomization of quick select. So what time would it take? Order n, due to the scheme being, I'm writing the average scheme, t of n by, you write it as say n by 2 ही कर देते हैं, plus order of n in partitioning. Partitioning में तो जाएगा ये n टाइम, पहली बार कर रहे हो। So this is the complexity. Anything else? So this is the code. You can also do this code by quick select बता रहा था तो मैं, आप एक और तरीके से भी कर सकते हो यूजिंग हीप्स। मैंने फाइंडिंग द kth लार्जेस्ट एलिमेंट हीप से भी होता है, मैंने उस पर लेक्चर दिया एक, बट दिस इज बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ द पार्टीशनिंग दैट वी हैव डन। सो बेस्ड ऑन partitioning. So that's it.